کورونا کے باوجود معیشت پر اچھے اثرات۔ ملتان میں آٹو انڈسٹری کی فروخت میں اضافہ۔ ایک ماہ کے دوران ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں 13,000 سے زائد نئی گاڑیوں کی رجسٹریشن ہوئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں بلال نیازی سے۔ بلال بتائیے گا۔ جی بالکل، ایکسائز ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو اس مہینے میں جو لاسٹ منتھ گزرا ہے اس میں جو آٹو انڈسٹری ہے اس کی ریشو میں ہم ہیں وہ اضافہ دیکھ رہے ہیں، اور ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں اس حوالے سے ریکارڈ رجسٹریشن ہوئی ہے۔ ایک تو سسٹم میں چینج کی گئی ہے، دوسری جانب شہریوں کی جانب سے بھی جو مختلف گاڑیاں ہیں، ویکلز ہیں، ان کی جو فروخت کی گئی ہے، ان کی خریداری کی گئی ہے، اس میں بھی ہمیں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈائریکٹر ایکسائز ملتان ڈویژن ہیں کہ وہ اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ سر بتائیے گا، ایک جانب کرونا چل رہے ہیں، معیشت کے حوالے سے پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاؤن ہے، جبکہ ہم ملتان یا پاکستان کی آٹو انڈسٹری کی بات کریں اس میں اضافہ ہوا ہے۔ ملتان ایکسائز ڈپارٹمنٹ میں کتنی گاڑیاں رجسٹر ہوئی ہیں اور اگر ہم کمپیئر کریں تو کتنا اضافہ ہوا ہے؟ جی بالکل، پچھلے سال اسی عرصے میں تقریباً 12,000 گاڑی رجسٹر ہوئی تھی۔ اس دفعہ تقریباً ہماری جو 13,500 گاڑی رجسٹر ہوئی ہے اس اکتوبر اور نومبر کے اسی دورانیے میں۔ تو اس طرح ریونیو جو ہمارے کلیکشن ہے وہ بھی 21 ملین زیادہ ہوا ہے سیم پیریڈ میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی یہاں پہ یونیورسل رجسٹریشن سسٹم کا پنجاب میں آغاز کیا گیا۔ پہلے گاڑیاں زیادہ تر کاریں اور لینڈ کروزرز، جیپس وغیرہ لاہور چلی جاتی تھی، امپورٹڈ گاڑیاں بھی، جاپانیز گاڑیاں بھی لاہور چلی جاتی تھی رجسٹریشن کے لیے۔ جب سے پورا انٹیگریشن ہوئی ہے اور ایک یونیورسل رجسٹریشن سسٹم کا آغاز ہوا ہے تو وہ ساری گاڑیاں اب ملتان میں ہی رجسٹر ہو رہی ہیں۔ ملتان کے جتنا ڈیلرز ہیں وہ یہی ملتان سے رجسٹریشن کروا رہے ہیں، تو اس کا بھی امپیکٹ پڑا ہے۔ اس کے علاوہ جو اپائنٹمنٹ مینجمنٹ سسٹم ہے، ہم نے دفاتر کو بھی فیسیلیٹیشن کے حوالے سے اس میں زیادہ اضافہ کیا ہے، سہولیات زیادہ پہنچا رہے ہیں، اور جو ویریفیکیشن پہلے کئی ہفتے لگ جاتے تھے وہ اب آن لائن ویریفیکیشن ہے کسٹم کی، امپورٹڈ گاڑیوں کی، وہ فوراً ویریفیکیشن ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے جو ہے ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ بھئی سیم ڈے بندے کو نمبر لگا کے رجسٹریشن حوالے کر دے۔ ساتھ ہی سمارٹ کارڈ کی ترسیل بھی بہتر ہو رہی ہے، اور اگلے چند ماہ میں نمبر پلیٹوں کی ترسیل بھی بہتر ہو جائے گی۔ تو اس چیز کا امپیکٹ جو ہے وہ رجسٹریشن کی تعداد پہ پڑا ہے، اور ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑا ہے۔ جی بالکل، ایک پازیٹیو امپیکٹ آیا، اور کورونا کے باوجود گاڑیوں کی رجسٹریشن میں اضافہ ہوا ہے۔ بلال نیازی آپ تفصیلات بتا رہے تھے۔ ملتان میں سول ڈیفنس کے اہلکار 5 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ 200 سے زائد سول ڈیفنس اہلکاروں کو 5 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں۔ مزید جان لیتے ہیں گوہر رحمان سے۔ گوہر بتائیے گا۔ جی بالکل، ملتان میں ایک ایسا ادارہ بھی ہے جو ہنگامی حالات میں سب سے آگے ہوا کرتا ہے، لیکن وہ اپنی تنخواہوں کے حوالے سے سب سے پیچھے ہے۔ ملتان کے جو سول ڈیفنس اہلکار ہیں انہیں 5 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں، جس کے باعث جو ان کی جو معاملات زندگی ہیں وہ خاصے متاثر ہو رہے ہیں، اور گھروں میں جو ان کی مشکلات بھی بڑھ چکی ہیں۔ اگر مجموعی طور پر بات کی جائے تو ملتان میں 200 سے زائد جو اہلکار ہیں انہیں 5 ماہ ہو چکے ہیں، سول ڈیفنس کے اہلکاروں کو ابھی تک جو ہے تنخواہیں نہیں دی گئی ہیں۔ خصوصاً طور پر اگر بات کی جائے تو یہ بیوروکریسی کی ڈیوٹیاں، افسران کی ڈیوٹیاں اور جو پروٹوکول کی ڈیوٹیاں ہیں، یہ تمام جو فرائض سر انجام ہیں یہ سول ڈیفنس اہلکار دیا کرتے ہیں۔ ملتان میں کرنٹینہ کی ڈیوٹی ہو، سہولت بازار کی ڈیوٹی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی کاروائیاں جاری ہیں ان کو بھی جو ہے تمام جو سول ڈیفنس اہلکار ہیں ان کی خدمات حاصل ہیں۔ لیکن افسران ان سول ڈیفنس اہلکار سے ڈیوٹیاں تو لے رہے ہیں، بیوروکریسی کے جو افسران ہیں جن میں کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، تمام جو افسران ہیں وہ ان کی ڈیوٹیاں تو لے رہے ہیں، لیکن ان کو تنخواہیں دینے والا کوئی نہیں ہے۔ 5 ماہ ہو چکے ہیں، ان کو جو ہے ابھی تک تنخواہ نہیں ملی ہے۔ ہمارے ساتھ سول ڈیفنس اہلکار موجود ہے، بتائیں گھر کے کیا حالات ہیں؟ 5 ماہ ایک لمبا عرصہ ہے، مشکل حالات چل رہے ہیں، کورونا بھی ہے، تو کیسے گزارا کر رہے ہیں؟ بہت مشکل گزارا ہو رہا ہے، 4-5 ماہ ہو گئے ہیں، کوئی تنخواہیں نہیں دی جا رہی۔ افسران سے بھی بات کی ہے اس معاملے میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نوٹس لیتے ہیں، لیکن ابھی تک بھی کچھ نہیں ہوا۔ حالات آپ کے سامنے ہیں، کورونا آئی ہوئی ہے، گھر کے حالات بہت خراب ہیں، پٹرول اتنا مہنگا ہے، ڈیلی ہم پٹرول خرچ کر کے آتے ہیں، ادھر 65 کلومیٹر ہمارا سفر ہے، وہاں سے کر کے آتے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی تنخواہیں کے بارے میں کچھ نہیں ہو رہا۔ ہماری اپیل ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور کمشنر ملتان، ڈپٹی کمشنر ملتان یہ فنڈ جاری کریں اور ہماری تنخواہیں کا مسئلہ حل کیا جائے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ سول سول ڈیفنس ڈیفنس کے اہلکاروں کو 5 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں۔ گوہر رحمان آپ تفصیلات بتا رہے تھے۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی تعمیر کا معاملہ، پنجاب حکومت کی ہدایت پر آئی ڈیپ نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا پلاننگ کمیشن تیار کر لیا۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کی تعمیر کا تخمینہ 6.50 کروڑ لگایا گیا ہے۔ آئی ڈیپ نے ملتان اور بہاولپور میں تیار کیے جانے والے سیکریٹریٹ اور جی او آر کے ڈیزائن تیار کر لیے ہیں۔
इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं उस्मान अलीम से। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की तामीर का मामला है जिस पर हुकूमत जो है वो संजीदा दिखाई देती है और इस पर तेजी से काम जो है वो किया जा रहा है। इसी के पेश नज़र हुकूमती अहकामात पर आईडैप ने बाकायदा तौर पर जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का डिज़ाइन और प्लानिंग कमीशन जो है वो तैयार कर लिया है, जिसके मुताबिक 6.5 अरब रुपए का तखमीना जो है वो जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से लगाया गया है। ये 2 सेक्रेटेरिएट जो हैं वो बनाए जाएंगे, एक सेक्रेटेरिएट बहावलपुर जबकि दूसरा सेक्रेटेरिएट मुल्तान में बनाया जाएगा, जहां पर 8 महकमों के दफातर जो हैं वो तामीर किए जाएंगे और वर्किंग की जाएगी। इसके अलावा जो रिहाइश गाहें हैं उनकी तामीर भी की जाएगी, जिसमें जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट, अगर मुल्तान की बात की जाए तो इसमें लॉ डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, पुलिस, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट और फिशरी के महकमे जो हैं ये बनाए जाएंगे। इसी तरह अगर बहावलपुर सेक्रेटेरिएट की बात की जाए तो इसमें आईडैप ने पंजाब सेक्रेटेरिएट का डिजाइन और प्लानिंग कमीशन तैयार कर लिया है। उस्मान अलीम आप तफसीलात बता रहे थे। दूसरी जानिब मुल्तान स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए। 7.5 करोड़ का स्पोर्ट्स ग्राउंड मंसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद मकसूद से। मकसूद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं सब मौजूद हूँ मुल्तान स्पोर्ट्स ग्राउंड में, जिसको 7.5 करोड़ की लागत से तैयार किया जाना था, जबकि सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब एहसान भुट्टा की जानिब से अल्टीमेटम दिया गया था मुल्तान स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को कि 15 नवंबर तक इस ग्राउंड की तज़ीन और आराइश का जो काम है वो मुकम्मल किया जाए। लेकिन 18 नवंबर हो जाने के बावजूद भी आज भी ये काम मुकम्मल नहीं हो सका, जिसकी वजह से जो मुल्तान के मुकामी खिलाड़ी हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामने से हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के प्लेयर, उनसे जानेंगे। भैया बताइएगा, 15 नवंबर भी डेडलाइन दी गई, उसके अलावा भी ये 5 साल से मनसूबा ताखिर का शिकार है, कितनी मुश्किलात होती हैं खेलते हुए? जी बिल्कुल, मुल्तान में बहुत ही कम ग्राउंड ऐसे हैं जहाँ पे मैचेस खेले जाते हैं। बस प्रैक्टिस के लिए नेट्स हैं, वो भी हम खुद ही मेंटेन करते हैं। गवर्नमेंट कोई इसके लिए वर्क नहीं कर रही। ये ग्राउंड भी आपके सामने 5 साल से ये हो रहा है इस पे काम, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ। 15 नवंबर इसकी डेडलाइन थी, लेकिन आज 18 हो गई है। देख लें, आपके सामने काम है। कम से कम मुझे तो लगता है ये 2-3 साल और नहीं होगा। तो अच्छा, अब आप क्या कहेंगे कि 20 नवंबर के बाद स्पोर्ट्स ग्राउंड का मंसूबा ताहाल मुकम्मल नहीं हो सका। मोहम्मद मकसूद आप तफसीलात बता रहे थे। अभी आपको बताएं, शहर मुल्तान के 5 बड़े पार्क्स जॉगिंग ट्रैक की सहूलत से महरूम हैं। पार्कों में जॉगिंग के लिए आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जान लेते हैं अली रियाज से। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान के पार्कों में आज जिस सहूलत के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ और दिखाने जा रहा हूँ वो ये है कि शहर मुल्तान के मुतअद्दिद ऐसे बड़े पार्क है जिसमें जॉगिंग ट्रैक की सहूलत मौजूद नहीं है। अभी जिस ट्रैक पर मैं चल रहा हूँ इसको वॉकिंग ट्रैक कहते हैं। मेरा कैमरा अगर आपको दिखा सके कि वॉकिंग ट्रैक और जॉगिंग ट्रैक में फर्क ये होता है कि जो वॉकिंग ट्रैक है वो पक्का बना होता है, जबकि जॉगिंग ट्रैक जो है उसमें ये सहूलत होती है वो कच्चा मट्टी और कैरी का बना होता है। तो मुल्तान शहर के मुतअद्दिद पार्क ऐसे हैं जिसमें अभी मैं मौजूद हूँ। ये आम खास बाग पार्क है, यहाँ पर ये सहूलियात है। मसला ये है, यहाँ पर ये पार्क तो अच्छा वेल मेंटेन है, लेकिन यहाँ पर जो जॉगिंग ट्रैक है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। मुल्तान शहर के मुतअद्दिद ऐसे बड़े पार्क जिसमें किला कोना कासिम बाग पार्क है, लेडीज पार्क शमशाबाद पार्क है, गिलानी पार्क है, जिक्रिया पार्क है, वहाँ पर जो जॉगिंग ट्रैक की सहूलत है वो नहीं है, जिसकी वजह से जो वॉक करने आने वाले शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और शहरी जो यहाँ पर वॉक के लिए आते हैं वो यहाँ पर उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। अभी जिस ट्रैक पर मैं चल रहा हूँ ये भी जो है वॉकिंग ट्रैक है। शहरी से बात करते हैं, बात सुनिएगा क्या कहना चाहेंगे। ये जो जिस ट्रैक पे आप चल रहे हैं कि ये जॉगिंग ट्रैक है, पहले तो ये बताओ, आपको पता है जॉगिंग और वॉकिंग ट्रैक में डिफरेंस? जी बिल्कुल पता है, जॉगिंग और वॉकिंग ट्रैक ये एक्चुअली पत्थर से बना हुआ है। ये वॉकिंग ट्रैक है। हम यहाँ जॉगिंग करने के लिए आए हैं तो हमें वॉक करनी पड़ रही है। गवर्नमेंट ने इतनी सारी फैसिलिटीज़ दी हैं, हमें गवर्नमेंट को चाहिए, इंतज़ामिया को चाहिए कि हमें जॉगिंग ट्रैक दे, मट्टी से बना हुआ ट्रैक दे, ताकि हम जॉगिंग कर सकें ना कि वॉकिंग करें। जी, जॉगिंग कर सकें। शहर औलिया के बेशतर पार्क्स जॉगिंग ट्रैक की सहूलत से महरूम हैं। अली रियाज आप तफसीलात बता रहे थे। रुक करेंगे रहीम यार खान का, जहां शेख ज़ैद अस्पताल के मुलाजमीन का तनख्वाहों के हुसूल के लिए 6ठे रोज भी एहतजाज जारी है। मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीक से। आसिम, बताएगा। शेख ज़ैद हॉस्पिटल के मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों के इजरा के हवाले से एहतजाज कर रहे हैं और आज 6ठा रोज़ है, मगर आप इनको तनख्वाहों के साथ साथ अपनी नौकरियों के भी लाले पड़ गए हुए हैं। डॉक्टर जुनैर आजम जो YDA के सदर हैं हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, तनख्वाहों का मुतालबा अपनी जगह पर तनख्वाहों का मुतालबा किया जाए, मगर डेली वेजेस जो मुलाजमीन है अब उनकी जो नौकरी है उनको भी लाले पड़ चुके हैं।
تو یہ کیا بات ہے کہ ان کو کیوں نوکریوں سے ختم کیا جائے؟ دیکھیں جی، آپ کے سامنے آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم لوگ 60 روز تک احتجاج پہ گئے، سارا کچھ ہوا، روڈز پہ تک نکلے. انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ کے تمام ملازمین کو تنخواہیں دے دی جائیں گی، لیکن اس کے بعد صرف 1 مہینے کی تنخواہ گرانٹ کی گئی. اس کے بعد ان سب ملازمین کو کہا گیا آپ اپنے اپنے کام کریں. ان ملازمین سے 2 مہینے کی مزید ڈیوٹیاں لے کر اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ ابھی تنخواہیں بھی نہیں ہیں اور آپ میں سے کچھ لوگوں کو فارغ کیا جائے گا. دیکھیں جی، اس طرح کے معاملات میں اگر اس طرح کی پالیٹکس یہاں پہ کی جائے گی تو میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر یہاں سے کسی بھی ملازم کو فارغ کیا گیا یا 2 دن کے اندر ان کی تنخواہ نہیں دی گئی، ہم دوبارہ احتجاج پہ جائیں گے، آؤٹ ڈور سروسز بند کر دیں گے. اور کورونا کے حالات میں کوئی ہاسپٹل، کوئی ہسپتال اس طرح کی سروسز بند کرنے کی حالت میں نہیں ہے. تو برائے مہربانی ان تمام ملازمین کی تنخواہ دی جائے اور کوئی بھی ملازم کو یہاں سے فارغ نہیں کیا جائے، ورنہ ہم 2 دن کا ٹائم دیتے ہیں. 48 گھنٹے کے بعد ہم آؤٹ ڈور سروسز بند کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ کوئی ملازم کام نہیں کرے گا. یہ میں ان کو بتا دوں کہ اگر 800 ملازمین جو اس ہسپتال کے لیے بے حد ضروری ہیں، اگر انہوں نے یہاں کام چھوڑ دیا تو کورونا کے حالات میں یہ ہسپتال مریضوں کو سہولیات فراہم کرنے سے قاصر ہو جائے گا. کورونا کے حالات میں احتجاج جاری ہے. بیورو چیف آسم صدیق آپ تفصیلات بتا رہے تھے. ابھی رخ کریں گے کوٹہ دکا، جہاں وارڈ نمبر 8 کی مین گلی میں بجلی کے بے ہنگم لٹکتے تار رہائشی خواتین کے لیے درد سر بن گئے ہیں. گیٹ کو ٹکراتے تار کی وجہ سے گھروں میں داخل ہونا مشکل ہو گیا ہے. تفصیلات جان لیتے ہیں تیمور اتھر سے. تیمور بتائے گا. آج بالکل اس وقت میں موجود ہوں وارڈ نمبر 8. یہ مین گلی ہے. یہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ بجلی کے بے ہنگم تار ہیں، گلی کے اندر لٹک رہے ہیں اور اسی کے ساتھ لوگوں کے گھروں کے جو گیٹس ہیں اس کے ساتھ بھی بجلی کے تار ٹکرا رہے ہیں. لوہے کے گیٹس ہیں، کسی بھی وقت کرنٹ آ سکتا ہے. متعدد بار اس کی نشاندہی کی ہے لیکن یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا. خواتین کافی پریشان ہیں، گھروں میں جانے کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہیں. میرے سے یہاں پر ایک خاتون موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. آپ کے گھر کے گیٹ کے اوپر یہ تاریں لگی ہوئی ہیں، کیا مشکلات آنے جانے میں، کیا کہیں گے؟ یہ ساری اتنی بارش آتی ہے جب بھی ڈر لگتا ہے. ویسے بھی دیکھنا کوئی بچہ بڑا کوئی ایسے سر لگتا ہے. دیکھیں کتنی نیچے آئی پڑی ہے ساری، اتنی بہت پریشان ہے بہت زیادہ. ان کا جلدی سے جلدی مسئلہ حل کیا جائے. جی بالکل، اور بھی شہری ہمارے ساتھ موجود ہے. آپ مجھے بتائیے گا، یہ سیڑھی لگا کے تاروں کو اونچا کیا ہوا ہے، کوئی چیز گزر نہیں سکتی، کیا مشکلات ہیں، کیوں نہیں ہٹایا جا رہا ان تاروں کو؟ بھائی جان، ہم نے 8-10 دفعہ بیابٹا والوں کو بھی بتایا ہے. یہ اتنا مشکلات کا سامنا ہے کہ ہمارے بچے سکول آنے جانے کے لیے بھی پریشان ہوتے ہیں. بارش وغیرہ آ جاتی ہے، پھر ہماری دیواروں میں کرنٹ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں بڑے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہم نے 1000 دفعہ بیابٹا والوں کو کہا ہے، یہ آپ کے سامنے، آپ ادھر کیمرہ مارے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. ہم اتنی دفعہ بیابٹا کے پاس گئے ہیں لیکن کوئی نہیں آیا. وہ آتے ہیں، ایس ڈی او صاحب آئے ہیں، وہ دیکھ کر چلے گئے ہیں، وہ ایک دفعہ بھی نہیں آتے. دیکھ کے چلے جاتے ہیں، کوئی سنتا نہیں ہے. کوٹہ میں بجلی کے لٹکتے تار شہریوں کے لیے درد سر بن گئے ہیں. تیمور اتھر آپ تفصیلات بتا رہے تھے. رخ کریں گے سخی سرور کا، جہاں کئی روز سے بجلی بند ہونے پر شہری سراپا احتجاج ہیں. تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ روحی علی موسیٰ رضا سے. علی بتائے گا. بالکل، وابڈا کی جانب سے بغیر وجہ بتائے آئے روز سٹی 1 کی جو بجلی ہے منقطع کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے سٹی 1 میں رہنے والے جو شہری ہیں، بستیوں کے لوگ ہیں، ان کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. سٹون کرشرز تو پہلے ہی محکمہ ماحولیات نے بند کر رکھے ہیں، مگر رات کے وقت بجلی نہ ہونے کی وجہ سے سٹون کرشرز کا جو لاکھوں روپے مالی کا سامان ہے وہ بھی چوری ہونا معمول بن گیا، جس کی وجہ سے سٹون کرشرز مالکان مختلف بستیوں کے جو لوگ ہیں سراپا احتجاج ہے. ان کے گھروں میں پینے کا پانی نہیں ہے، رات کے وقت ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. وابڈا افسران سے رابطوں کے باوجود بھی کچھ مسئلے کا حل نہ ہو سکے. یہاں پر لوگ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ان کو کیا پریشانی ہے. اسی سویرے سویرے اٹھدوں، نہ کوئی بجلی ہے نہ کوئی پانی ہے، مال ہے وہی تس ہے. اساں آپ ہی میں مثال ہاتھ منہ دھوਣ کتے پانی کا نہیں آتا. بالکل سویرے 7 بجے کے بجلی ویندی ہے، شام کو بالکل ہوندی کہ نہیں، نہ رات دا بجلی ہوندی ہے. تنگ تھے پیوں یا اپیل ہے بجلی سگو ڈتی ونجے، اساں ہی سنگے روڈ تے کھڑوں احتجاج کریں دے پیوں یا اپیل کریں دے پیوں سے. بالکل یہاں پر لوگ سراپا احتجاج ہیں. علی موسیٰ رضا آپ تفصیلات بتا رہے تھے. ابھی رخ کریں گے مظفر گڑھ کا، جہاں میپکو سرکل مظفر گڑھ نے کرش مینٹیننس پروگرام شروع کر دیا ہے. سپرنٹینڈنٹ انجینئر میپکو سرکل کا کہنا ہے کہ شہر میں فیڈرز تبدیل کیے جا رہے ہیں. مزید جان لیتے ہیں نمائندہ روحی عامر ڈوگر سے. عامر بتائے گا. جی بالکل، میپکو سرکل مظفر گڑھ کے حکام نے مظفر گڑھ میں کریش مینٹیننس پروگرام جو وہ آج سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا. اس سلسلے میں سپرنٹینڈنٹ انجینئر میپکو سرکل ماہر نظر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اس پروگرام کے تحت مظفر گڑھ کے تمام شہر کے فیڈرز جو تبدیل کی جائیں گے اور اس کے علاوہ تاروں کی تبدیلی اور دیگر معاملات جو وہ دیکھے جائیں گے. ٹیمیں باقاعدہ طور پر تشکیل دے دی گئی ہیں. سپرنٹینڈنٹ انجینئر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی کریش مینٹیننس پروگرام کی جو ضرورت پیش آتی ہے. جن علاقوں میں تاریں جو نچلے
इलाकों से गुजर रही हैं और सतह ज़मीन के बिल्कुल करीब हैं उनको जो है वो ऊंचा किया जाएगा। जिन इलाकों में दरख्त जो रुकावट हैं उन दरख्तों को जो वो काटा जा रहा है और इस सिलसिले में तमाम तर टीमें जो वो तश्कील दे दी गई। खासकर मुजफ्फरगढ़ का जो सिटी फीडर है इसकी मेंटेनेंस जो मुजफ्फरगढ़ में क्रैश मेंटेनेंस प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। आमिर डोगर आप तफसीलात बता रहे थे। अभी आपको बताएं मौसम सरमा के आते ही जलालपुर पीरवाला में गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू हो गई है। सुई गैस की लोड शेडिंग और गैस प्रेशर कम होने से खवातीन को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना है। जान लेते हैं राना शौकत से। राना शौकत बताएगा। सर्दियों की शिद्दत में जो इजाफा होता जा रहा है तो गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो मामूल बन चुकी है और उसके साथ साथ जो प्रेशर की बात करें तो प्रेशर बिल्कुल नहीं है, जिससे शहरियों को खासकर ऐसे तलबा तालबात जो सुबह स्कूल जाते हैं उनको और जो उनके वालिदैन है खवातीन है उनको खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ खवातीन मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुश्किलात का सामने आपको। गैस नहीं होता, प्रेशर कम है, बच्चों का ब्रेकफास्ट तैयार करना होता है, क्या कहेंगे आप? जी, गैस बहुत कम है। पहले तो 6 बजे तक होती नहीं है और जब 6 बजे आती है तो उसका प्रेशर बहुत कम होता है, तो बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाना होता है, पानी गर्म नहीं होता, तो हमें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना होता है। ना बच्चों को नाश्ता बना के दे सकते हैं और ना उनको गर्म पानी से मुंह धुलवा सकते हैं। नाश्ता नहीं बनाया जा सकता, आप क्या कहेंगे इसमें? जी बिल्कुल यही बात है कि अगर गैस आ जाता है तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है। इतना होता है कि उस पर हम कुछ बना नहीं सकते, तो बच्चों को स्कूल के लिए भी लेट हो जाता है और फिर हमें भी देर हो रही होती है। हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि गैस की लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए। जी बिल्कुल, हुकूमत गैस की अदम दस्तयाबी से खवातीन को परेशानी का सामना है। राना शौकत आप तफसीलात बता रहे थे। बहावलपुर शहर भर के शॉपिंग मॉल्स और दुकानों से फायर सेफ्टी सिलेंडर्स और आग बुझाने वाले आलात गायब। सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट मुतहरिक। दर्जनों केस स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर कर दिए गए। मजीद जान लेते हैं महमूद जहीर से। जी महमूद बताएगा। जी, स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कल इस हवाले से तकरीबन 70 के नज़दीक ताजरों को जुर्माने किए कि उनकी दुकानों पर आग बुझाने वाले आलात नहीं थे। इस हवाले से सिविल डिफेंस ने प्रोसीडिंग की थी। तो आज हम मार्केट में देखते हैं क्या वाकई वहाँ पर आग बुझाने वाले आलात नहीं हैं, और अगर नहीं हैं तो क्यों नहीं है, और हों तो कितने ज़रूरी हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप की यहाँ पर शॉप है, लाखों का माल है, आपने आग बुझाने वाले आलात नहीं रखे हुए, फायर वो नहीं रखा हुआ, आप इसके सिलसिले में क्या? यहाँ पे रोटी पूरी नहीं होती, महंगाई इतनी है, आवाम बिल्कुल बेहाल हो गई है। ये जो हुकूमत मौजूदा आई है इसने आवाम को किसी सूरत भी सोचने का मौका नहीं दिया। हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करें या एक्स्ट्रा चीज़ों को पूरा करें। वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 300 या 500 तक आ जाएगा। इसमें 500 रुपये में कितना खर्चा? अगर आग लग जाए आपकी सारी दुकान जल जाएगी। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, अगर हालात भी हम रख लें फिर भी आग लग जाए तो फिर भी दुकान जल सकती है। फिर भी जल सकती है। जी, हाईली फ्लेमेबल दुकान पे इस वक्त हम मौजूद हैं। प्लास्टिक का काम है और कपड़े का काम है। खान साहब, आपने प्लास्टिक और कपड़े की 2 चीजें रखी हुई हैं, कुछ आग लग जाए तो इसमें बुझाने वाला हालात कोई नहीं है, वो फायर वाला वो नहीं है, इसकी क्या वजह है? जी आए ना आप हमारे साथ। आप लोगों ने यहाँ पर हाईली फ्लेमेबल है, जूते जल सकते हैं, कपड़े जल सकते हैं, आपने आग बुझाने वाले हालात क्यों नहीं रखे? सर रखेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। आप रखेंगे? अभी तक क्यों नहीं रखे? वो पता नहीं था, हमें पहले पता नहीं था। जी, अब हम आगे चलेंगे, हम आपको दुकानों से आग बुझाने वाले आलात गायब हैं। महमूद जहीर आप तफसीलात बता रहे थे। अभी आपको बताएं कि रोही बना अलीपुर के शहरियों की आवाज। रोही की निशानदेही पर हॉकी ग्राउंड से सीवरेज का पानी निकाल दिया गया है। मजीद जान लेते हैं राना इमरान सईदी से। राना इमरान सईदी बताएगा। बिल्कुल जी, कुछ अर्सा कबल जो है अलीपुर के हॉकी ग्राउंड में सीवरेज का पानी जमा हो चुका था, जिससे जो है हॉकी ग्राउंड में पानी जमा होने के बाद जो है ताफुन फैल चुका था। और इसका जो सबसे बड़ा जो नुकसान था वो जो है यहाँ पर तुलबा को, खिलाड़ियों के साथ शहरियों का भी हुआ था, क्योंकि वो यहाँ पर आके जो है मस्बत सरगर्मियाँ करते थे, मुख्तलिफ जो है गेम्स वो खेला करते थे, जिसकी निशानदेही जो है रोही ने की और उसके बाद इंतजामिया ने नोटिस लिया। आज जो है सीवरेज का जो पानी था हॉकी ग्राउंड में जो जमा हुआ था उसको निकालने के बाद यहाँ सफाई कर दी गई है। जो ग्रासी प्लाट है उसको भी दोबारा जो है वो लगाया जा रहा है। रोही का जो है आज तुलबा के साथ जो है शहरियों ने भी शुक्रिया अदा किया है। यहाँ पर स्टूडेंट मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं। इधर आ जाए बेटा, क्या कहेंगे जी? जी, यहाँ पर इलाके का जो सीवरेज का सिस्टम था, यहाँ पर पानी बहुत जमा हो गया था और रोही टीवी की कवरेज की वजह से जो इसकी सफाई हो गया, और हम रोही टीवी के मशकूर हैं बेहद कि उन्होंने रिपोर्टिंग की और इसकी फिर पानी इसका साफ किया, और अब हम यहाँ पर बैठते हैं, पढ़ते हैं और खेलते भी हैं।
रोही टीवी के इंतहाई मशकूर हैं क्योंकि ग्राउंड से सीवरेज का पानी निकाल दिया गया है और सफाई भी कर दी गई है। राना इमरान सईदी आप तफसीलात बता रहे थे। अभी आपको बताएं कि सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही विहाड़ी में खुश्क लकड़ी की कीमतों में 200 से 300 रुपए फी मन तक इजाफा हो गया है। मजीद बात कर लेते हैं हाफिज साले मोहम्मद से। हाफिज साले बताइएगा। बिल्कुल, सर्दी का मौसम बढ़ते ही लकड़ी की मांग में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से लोग जो है वो लकड़ी खरीदने के लिए जो है वो टाल पे आने लगे हैं। इस वक्त टाल मालिक हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। अच्छा, ये बताएं कि सर्दी के मौसम में कितना कारोबार होता है और इस वक्त लकड़ी फीमन कितनी है? ਲੱਕੜ ਦਾ ये रेट मुख्तलिफ किस्म 600 रुपए भी, 400 रुपए भी है जी, 660 रुपए भी है, 700 रुपए भी है। अच्छा, ये बताएं कि लोग उमूमी तौर पे किस तरह की लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, चूँकि बाज़ जो है वो गुटका इस्तेमाल करते हैं, खुश्क लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, बाज़ बड़ी लकड़ी भी लेके जाते हैं। हाँ जी सर, जो ज़्यादा ना खुश्क इस्तेमाल करते हैं, 700 रुपए वाली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। साड़ी साल है ना वो मेहनत की होंगी, असीं रखिया होंदा साल सांभ के फिर बेचते हैं सर्दियाँ। गर्मियों में इन्नी मांग कोई नहीं होंदी इसकी। जी बिल्कुल, गर्मियों में इतनी मांग नहीं होती, सर्दियों के अंदर जो है वो सर्दी आते ही लकड़ी की फीमन कीमत में इजाफा हो गया है। हाफिज साले मोहम्मद आप तफसीलात बता रहे थे। झूठा निकाहनामा बनाकर खातून को बीवी जाहिर करना शहरी को महंगा पड़ गया। लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच ने शकील नामी शख्स को झूठा दावा करने पर 80,000 रुपए जुर्माना कर दिया। अदालत ने पुलिस को शकील के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। मजीद जान लेते हैं महमूद जहीर से। महमूद बताइएगा। जी, बहावलपुर के लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच में आज फिर एक झूठे निकाह का केस की समाअत हुई है। इस हवाले से हुकूमत को जरूर कोई इकदाम करने चाहिए कि झूठे केसेस जो है निकाह के काफी सामने आने लगे। एक बीबी है, उन पर झूठा मुकदमा बना दिया गया एक शख्स की जानिब से कि जनाब ये मेरी बीवी है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। तो ये खातून से ही जानते हैं, क्या मामला जरा बताइएगा। जी, मैं उसके पास नहीं गई थी, वो झूठा इल्जाम लगा रहा है मुझ पे, मेरा निकाह भी नहीं है उसके नाम। अब मैं माँ के पास रह रही हूँ। तो अदालत ने क्या किया आपके साथ? अदालत ने तलब की थे, सही इंसाफ दी थे। इंसाफ दिया है। उनके कौंसल से जानते हैं, जनरल सेक्रेटरी भी हैं अकरम बलोच साहब, जरा बताइएगा क्या मामला है। शकील नामी शख्स ने एक रेट पटिशन दायर की है हाई कोर्ट में और वो है 7251 कोर्ट नंबर 1 भावलपुर बेंच में ऑनरेबल जस्टिस तारिक अब्बासी साहब के पास थी और उन्होंने ये खातून को तलब किया। तलब करने के बाद खातून ने स्टेटमेंट दी कि शकील नामी शख्स से मेरा कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, ना मेरे खामिद है और ना मेरा कोई तल्लक है। उसके बाद कोर्ट ने उसकी स्टेटमेंट की रोशनी में जो रेट पटिशन थी वो डिसमिस कर दी, साथ उसको 80,000 उसको जुर्माना भी किया और उसके खिलाफ मजीद लीगल जो प्रोसीडिंग है, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग का भी हुक्म जारी किया है। ये भी आप सुन रहे हैं, मोहतात है। निकाहनामा बनाना महंगा पड़ गया है। महमूद जहीर आप तफसीलात बता रहे थे। अभी आपको अपडेट करेंगे मुल्तान से, जहां पोस्ट ऑफिस जीपीओ मुल्तान में लाखों रुपए की रकम खुर्द-बुर्द करने का मामला। एफआईए ने करप्शन का मुकदमा दर्ज करके साबिक मुलाजिम हमीदुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। एफआईए का कहना है कि मोहम्मदपुर गोठा के रिहायशी मोहम्मद हमीदुद्दीन पर करप्शन का इल्जाम है। सर्विस जीपीओ ऑफिस में 11,09,500 रुपए की रकम गबन की थी। एफआईए ने मुलजिम पर 471, 468, 420 और 409 की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। डीजी खान में आरपीओ फैसल राना ने चारों इजला में कबायली जिरगे मुनक्किद करवाने वाले अफराद की रिपोर्ट तलब कर ली है। आरपीओ फैसल राना की जानिब से चारों इजला के डीपीओज को हिदायत जारी कर दी गई हैं। तफसीलात जान लेते हैं आशिर अशफाक से। आशिर बताएगा। बिल्कुल, थाना करमदाद कुरैशी की हुदूद में मुनक्किदा होने वाले गैर कानूनी जिरगे के नोटिस के बाद आरपीओ डेरा गाजी खान फैसल राना की जानिब से नोटिस लिया गया है। खसूसी तौर के ऊपर वो अफराद जो गैर कानूनी जिरगा मुनक्किद करवाते हैं या गैर कानूनी जिरगों में मुलविस हैं, उनके खिलाफ खसूसी तौर के ऊपर कार्रवाइयों की जो है हिदायत की गई है और चारों डिस्ट्रिक्ट के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको आरपीओ डीजी खान कैप्टन रिटायर्ड फैसल राना की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं। ऐसे लोगों की लिस्टें मुरतब की जाए जो गैर कानूनी तरीके से जिरगे मुनक्किद करते हैं या गैर कानूनी तरीके से जिरगों में मुलविस होते हैं, उनकी लिस्टें तैयार करके आरपीओ डीजी खान को भिजवाई जाए और इसके हवाले से चारों डिस्ट्रिक्ट के डीपीओज को आरपीओ डीजी खान की जानिब से खसूसी तौर पर हिदायत जारी कर दी गई है। आशिर अशफाक आप तफसीलात बता रहे थे। डेरा गाजी खान में इंतजामिया ने बाजारों में खरीद फरोख्त के दौरान शॉपर के इस्तेमाल पर 1 दिसंबर से पाबंदी आयद कर दी।
ताजिर कहते हैं कि इंतजामिया ने एतमाद में लिए बगैर फैसला किया। जान लेते हैं मोहसिन उल मुल्क से। मोहसिन, बताइएगा इस हवाले से। डेरा गाजी खान इंतजामिया ने अदालती फैसले के बाद शॉपर्स के ऊपर पाबंदी आयद कर दी है और अब से 1 दिसंबर तक ये पाबंदी सिर्फ आगाही तौर पर दी जाएगी और उसके बाद कार्रवाई होगी और दुकानें भी सील की जाएंगी। लेकिन जो दुकानदार है वो क्या कहते हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। इंतजामिया ने कहा 1 दिसंबर के बाद कोई भी शॉपर के साथ चीज बेचेगा उसकी दुकान बंद कर दी जाएगी। दुकान बंद करने से पहले शॉपर की फैक्ट्री बंद करो मेरे भाई। दुकान बंद करोगे अब हम किस चीज में देंगे? हाथ में देंगे गाहक को? जब फैक्ट्री बंद हो जाएगी जाहिर सी बात है दुकानदार भी इस्तेमाल। कपड़े वाले थैले ले लेना आप। कपड़े वाले थैले आ जाएंगे, पहले फैक्ट्री तो बंद करें। अरबों रुपया करोड़ों रुपया टैक्स लगा हुआ मिलता है हुकूमत को, हुकूमत कहाँ बंद करेगी? आप शॉपर बंद नहीं करेंगे 1 दिसंबर तक? हम तो जब बंद करेंगे जब फैक्ट्री बंद करेगी। अच्छा, तब तक नहीं करें, नहीं तो सील हो सकती है आपकी दुकान। 15 दिन मेरे भाई जब सील होगी ना पहले फैक्ट्री तो सील करो। कैसे इकदाम है जी इंतजामिया? इंतजामिया का तो सही है, वो तो सही कह रहे हैं आपको। उन्होंने भी, उनकी भी तो मजबूरी है ना, उनकी भी तो मजबूरी है। और कहाँ जाए, वो मांगते हैं ग्राहक। अब वो ग्राहक को अटेंड करें, इनको अटेंड करेंगे, किस तरह करेंगे? वो सही कह रहे हैं, फैक्ट्री बंद करवा दो, पीछे से जी कोई चीज मिलेगी, फिर वो कैसे करेंगे? जब इंतजामिया को पहले वो उधर वो वहाँ करना चाहिए उनको पहले। वो भी तो सही कह रहे हैं ना। हाँ जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। दुकानदारों का कहना है कि शॉपर बंद करने से पहले शॉपर बनाने वाली फैक्ट्रियों को बंद किया जाए। ब्यूरो चीफ मोहसिन उल मुल्क आप तफसीलात बता रहे थे। मुल्तान ट्रैफिक पुलिस का हादसात की रोकथाम के लिए अहम इकदाम। अब ओवर स्पीड गाड़ियों को गन मशीन सिस्टम से पकड़ा जाएगा। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर का कहना है कि गन मशीन सिस्टम की मदद से तेज रफ्तारी पर निगरानी होगी। मजीद बात कर लेते हैं माहिर इमरान से। इमरान, बताएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल मुल्तान के शहरी अब हो जाएं होशियार, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो इकदाम इन ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन है, तेज़ रफ्तारी को कैसे कंट्रोल किया जाएगा और उन लोगों के खिलाफ जो इस तेज़ रफ्तारी में मुलविस होंगे और हादसात का सबब बनेंगे, क्या क्या इकदामात किए जा सकते हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बताइएगा कि अब इन तेज़ रफ्तारी से निपटने के लिए नया जो लाया अमल बनाया गया है, इस हवाले से क्या? आपने देखा होगा कि जो विहाड़ी रोड है ये टूट फूट का शिकार भी है और वहाँ पे एक मिक्स किस्म की ट्रैफिक चलती है। मिक्स से मेरी मुराद है ये है कि वहाँ पे छोटी गाड़ियाँ होती हैं, बड़ी हैं, पीएसपी हैं, रेड़े भी हैं, ट्रक भी हैं। तो उस मिक्स ट्रैफिक की वजह से हादसात का बायस बनता है ये बात। तो उसके लिए हमने वहाँ पे स्पीड गन जो है ना वो खड़ी कर दी है। स्पीड गन वहाँ पे मौजूद है जिसमें पीएचपी की नफरी होती है और हमारे ट्रैफिक पुलिस के भी लोग होते हैं। वो उसका बाकायदा स्पीड गन से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसकी जो यहाँ पे स्पीड लिमिट कायम की गई है उस स्पीड से ज़्यादा अगर कोई वहाँ पे गाड़ी अपनी चलाएगा तो वो उसके खिलाफ न सिर्फ चलान होगा बल्कि मुकदमा 279 के गफलत, तेज़ी और लापरवाही से जो होते हैं वो भी दर्ज किए जाएंगे। सिमिलरली आपने देखा होगा शहर के अंदर वन वे की लोग खिलाफ वर्जी करते हैं, वो न सिर्फ अपने लिए डेंजरस होते हैं बल्कि किसी दूसरे जानों की ज़िया का भी बायस बनते हैं। खसूसी तौर पे कारें या मोटरसाइकिल या ऐसी दूसरी गाड़ियां जो वन वे की खिलाफ वर्जी करती हैं वो भी उसी गफलत और लापरवाही के ज़ुमरे में आता है। तो उनके खिलाफ भी हम इंशाअल्लाह 279 के मुकदमा दर्ज करेंगे। तेज रफ्तारी के बायस जो बार तेज रफ्तार गाड़ियों को गन मशीन सिस्टम के जरिए पकड़ा जाएगा। माहिर इमरान आप तफसीलात बता रहे थे। अभी रुख करेंगे मुजफ्फरगढ़ का, जहां गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज में 7 रोजा नेशनल लेवल स्काउट प्रोग्राम का आगाज। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा रोही आमिर डोगर से। आमिर डोगर, बताइएगा। बिल्कुल, गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज मुजफ्फरगढ़ में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर 7 रोज़ा स्काउट नेशनल लेवल का प्रोग्राम जो वो शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम बेसिकली है क्या और इसमें स्काउट्स को किस हवाले से और क्या तरबियत दी जा रही है? जो कोर्ट्स के लीडर हैं अजहर डोगर साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि बेसिकली ये क्या प्रोग्राम है और इसका फ़ायदा क्या है, इसका मकसद क्या है, क्या क्या कोर्सेज यहाँ पर सिखाए जा रहे हैं स्काउट्स को? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन ने पाकिस्तान लेवल पे रोवर स्काउट लीडर कोर्स को इनेकाद किया है मुजफ्फरगढ़ में, जिसमें हम रोवर्स को कोविड-19 के हवाले से, स्मोक के हवाले से और डेंगू वायरस के हवाले से भी तरबियत दे रहे हैं कि अपने कॉलेजेस में जाकर वो बाकियों को सिखा सकें। इनमें हम लैशिंग है, नॉट्स हैं, खेमे में रहना है, खुद कुकिंग करना है, सेल्फ डिफेंस है, मेडिकल है, फायर फाइटिंग है और हाइकिंग और ट्रैकिंग के साथ हम इनकी तरबियत कर रहे हैं ताकि ये मुआशरे में बेहतर किरदार अदा कर सकें। और हमारे इस कोर्स का थीम है स्काउटिंग, पीस थ्रू स्काउटिंग। और फाइनली हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं 5th जनरेशन वार के अगेंस्ट शोधा
निशान हैदर्स को, और उन्हीं के नाम पे हमने अपने पेट्रोल्स के नाम रखे हैं। थैंक यू। मुजफ्फरगढ़ प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। आमिर डोगर आप तफसीलात बता रहे थे। एक बार फिर से रुख करेंगे मुल्तान का, जहां सोशल वेलफेयर ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में टेक्निकल ट्रेनिंग यूनिट बनाने का फैसला। ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में जेर इलाज मरीजों को हुनरमंद बनाने के लिए क्लासेस दी जाएंगी। रिहेबिलिटेशन सेंटर में जेर इलाज मरीजों को टेलरिंग, रिपेयरिंग और दीगर हुनर सिखाए जाएंगे। तो आपको अपडेट करें हैं मुल्तान से, जहां सोशल वेलफेयर ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर में टेक्निकल ट्रेनिंग यूनिट बनाने का फैसला किया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मुल्तान में पीडीएम जलसे के हवाले से शुजाबाद में पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन, सूबाई हल्का PP 221 का वर्कर्स कन्वेंशन रियाज कॉटन फैक्ट्री मिल में मुनाकिद होगा। वर्कर्स कन्वेंशन से साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर पार्टी ओहदेदारान खिताब करेंगे। इस हवाले से तैयारियां जारी हैं। अब जान लेते हैं अमजद मलिक से। अमजद, बताइएगा तैयारियों के हवाले से। जी बिल्कुल, पीडीएम जलसे के हवाले से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तमाम जो हलकों के अंदर वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। आज मुल्तान की तहसील शुजाबाद PP 221 में वर्कर्स कन्वेंशन जो है वो मुनक्किद हो रहा है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी समेत दीगर जो ओहदेदारान है, पार्टी जो कारकुनान है, वो खिताब भी करेंगे। इस वक्त पिंडाल जो है वो सजा दिया गया है। अगर आपको मेरा कैमरा मैन दिखाए तो कुर्सियां जो है लगा दी गई हैं। कारकुनों की जो आमद का सिलसिला है वो जारी है। पार्टी परचम भी उठाए हुए हैं। खासा जोश खरोश नजर आ रहा है। बेसिकली ये कारकुनों को चार्ज किया जा रहा है कि जो 30 नवंबर को मुल्तान में पीडीएम का जलसा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्राउड वहां पे लाया जा सके। हमारे साथ मौजूद हैं शुजाबाद के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। जी आप मुझे बताइएगा कि कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज लोग यहाँ पे आएंगे, और आज के कन्वेंशन के हवाले से बताइएगा। ये वर्कर्स का ये कन्वेंशन है और ये पीडीएम का जो जलसा है 30 नवंबर का यौम तासीस है पीपल्स पार्टी का। उस दिन पीपल्स पार्टी की 1967 में बुनियाद रखी गई थी और मेज़बानी का जो शर्फ है इस जलसे का वो पीपल्स पार्टी को हक मिला है। और इंशाल्लाह हम इसकी प्रेपरेशन के लिए अपने वर्कर्स को हमने कॉल की है। आज उम्मीद है कि घंटे डेढ़ तक तमाम तहसील से बिल्कुल उम्मीद जाहिर की जा रही है कि एक बड़ा क्राउड जो है यहाँ पे जमा होगा। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मुल्तान डिवीजन के मौजूद हैं, राउसाजी साहब, आप बताइएगा क्या कहेंगे। तमाम सूबाई हलकों में वर्कर्स कन्वेंशन हो रहा है, क्या इसके बाद कौमी असम्बली में भी जो हल्के हैं उधर भी कन्वेंशन होगा? आगे जलसों के हवाले से पाबंदियां भी हुकूमत आयद कर रही है, क्या समझते हैं जलसा होगा? जी जलसा इंशाल्लाह भरपूर होगा। चीनी चोरों के खिलाफ होगा, अट्टा चोरों के खिलाफ होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यौम तसीस होगा जो कोई भी नहीं रोक सकता। कल भी पीडीएम के सरबराहों का इजलास था, उसमें ये क्लियर हो चुका है कि किला कोना कासम बाग पे जो यौम तसीस का जलसा है पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में, इंशाल्लाह वो भरपूर होगा। और वो जलसा नहीं होगा, वो इस हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम होगा। और इंशाल्लाह यह तहसील शुजाबाद का सूबाई हल्का है 221 जो गिलानी साहब का कौमी असम्बली का हल्का है, यूसुफ रजा गिलानी साहब भी आ रहे हैं। उसके रिसेप्शन के लिए वर्करों में बड़ा जोश और जज्बा है। मुख्तलिफ जगहों पे जुलूस की शक्लों में आ रहे हैं, खवातीन आ रही हैं और इंशाल्लाह ये बिल्कुल खवातीन आ रही हैं। जो मर्द हैं बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो जियाले हैं, कारकुनान हैं, उनके आमद का सिलसिला जारी है। हमारे साथ शुजाबाद तहसील के सदर मौजूद हैं। जी आप मुझे बताइएगा क्या कहेंगे आज ये कन्वेंशन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह हम भरपूर हिस्सा लेंगे पीडीएम के जलसे में, और जो हमारे वर्कर हैं हम उनकी तैयारी कर रहे हैं पीडीएम के जलसे 30 सितंबर के लिहाज से। इसलिए इंशाल्लाह भरपूर हम कोशिश करेंगे भरपूर। बिल्कुल जो कारकुनान है पीडीएम जलसे के हवाले से तैयारियों का सिलसिला जारी है। अमजद मलिक आप तफसीलात बता रहे थे।